دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ کار ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا معیار ہے جہاں حملہ آپ کرتے ہیں اور جوتے بھی آپ ہی کھاتے ہیں۔ اور جب عالمی میڈیا نے تفصیلات مانگی تو ایک بھارتی نے ناعلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تکنیکی معاملات ہیں، دشمن اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ صدقے جاؤں تیری معصومیت پہ۔ $100 بلین کے ہتھیار انہوں نے خریدے، وہ کچرا، اور اب آگے جو 100 کے خریدنے جا رہے ہیں وہ بھی کچرا، اور اب انہیں وہ سبق دوبارہ سے ABC سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ وہ میجر گوبر آریہ کہتا ہوا بے شرم آدمی ہے کہ جوتے کھانے کے بعد بھی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ارے بھائی، جب آپ پاکستان کے اندر گھس کر حملہ کریں گے تو جواب تو فوج ہی دے گی، نہ کہ واگا بارڈر پر کھڑے ہوئے غریب کسان۔ پاکستان نے ثابت کیا کہ جذبہ، ہوشیاری اور سمارٹ ٹیکنالوجی سے وہ سب ممکن ہے جو صرف طاقت سے نہیں ہو پاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھارت کی جب آتی ہے تو وہ پاکستان اور چین کی طرف جوتے کھانے کے لیے بھاگتا ہے؟ 9 مئی 2025 کی رات، جنوبی ایشیا کی تاریخ کے وہ چند گھنٹے جسے بھارت شاید کبھی بھلا نہ پائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت وہ زہریلا تھپڑ مارا جو بھارتی فوج کو نہ صرف جنگی طور پر بلکہ نفسیاتی طور پر بھی ہلا کر چلا گیا۔ اس رات پاکستان نے جدید ملٹی ڈومین آپریشن کے تحت سینکڑوں ڈرونز بھارت کی حدود میں جھونک دیے۔ بھارتی ایئر ڈیفنس، جس پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے، ایسے خاموش ہو گئی جیسے پرانے زمانے کی ٹیوب لائٹ، کبھی جلتی تھی، کبھی بجھتی تھی، کبھی جلتی تھی، کبھی بجھتی تھی، کیونکہ پاکستان 400 سے 500 سے زیادہ ڈرونز بھارت میں جھونک کر اس کے دفاعی نظام کی نقب لگا چکا تھا۔ اور اگلے ہی دن پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کا دھماکہ خیز مظاہرہ کیا، بھارت کے طاقتور S-400 ریڈار سسٹمز کو جیم کر دیا اور کمیونیکیشن سسٹمز بیٹھ گئے، اور بھارتی فوج اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتی رہی۔ پاکستان نے بڑی ہی چالاکی سے S-400 کا نقب لگایا، پہلے ڈرون اس کے نرغے میں پھینکے، اور جیسے ہی انہوں نے نشانہ لگایا، پاکستان نے سیٹلائٹ سے الیکٹرانک سگنیچر لے کر اپنے شاہین فضا میں راج کرنے کے لیے بھیج دیے، جن سے بھارت کا دفاعی نظام عوام کا دفاع تو کیا کرتا، خود اپنا دفاع بھی نہ کر پایا۔ لیکن بھارت کہتا ہے نہیں، سب جھوٹ ہے۔ جیسے بچہ چاکلیٹ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میری نہیں ہے، آپ رکھ لیں، یہ میری نہیں ہے۔ ادھر نریندر مودی، جنہیں شاید لگتا ہے کہ بریفنگ بھارتی فوج نے نہیں بلکہ بھارتی میڈیا نے دی ہے، کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، ہم نے نیوکلیئر بلیک میل برداشت نہیں کریں گے، ہم نے نیا معیار قائم کیا۔ جی مودی جی، معیار تو آپ نے قائم کیا ہے، خود حملے کر کے خود ہی جوتے کھانے کا اعلیٰ معیار۔ یہ تقریر اس وقت ہوئی جب سوشل میڈیا پر آپریشن بلنڈر ٹرینڈ کر رہا تھا اور دنیا بھر کے دفاعی تجزیہ کار ہنس رہے تھے کہ یہ کیسا معیار ہے جہاں حملہ آپ کرتے ہیں اور جوتے بھی آپ ہی کھاتے ہیں۔ کچھ سمجھ نہیں آئی آپ کی منطق مودی جی۔ مودی کی تقریر ایسی تھی جیسے فلم میں ولن پٹائی کے بعد کہے کہ یہ تو میری اپنی پلاننگ تھی، دیکھا کتنی اچھی پلاننگ تھی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ پلاننگ تھی، نہ تیاری تھی، اور نہ ہی کوئی جواب۔ مودی نے بعد از جنگ ریلی میں کہا کہ ہماری فوج نے دشمن کو سبق سکھایا۔ سوشل میڈیا پر عوام نے مزاحیہ میمز میں لکھا کہ سبق تو سکھایا مگر ریورس گیئر میں۔ پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگ کا توازن ٹیکنالوجی نہیں بلکہ حکمت عملی، جرت اور بر وقت فیصلوں سے جیتا جاتا ہے۔ بھارتی جرنل گواہی دے رہے ہیں کہ چین کا اسلحہ اور پاکستان کے جنگجو بہت لیتھل کمبینیشن ہے۔ چینی و ترکی ساختہ ڈرونز، JF-17 اور قابل ذکر انٹیلیجنس نیٹ ورک، یہ سب بھارت کی مہنگی مگر غیر مؤثر مغربی فوجی ساز و سامان پر بھاری پڑی۔ وہ میجر گوبر آریہ کہتا ہوا بے شرم آدمی ہے کہ جوتے کھانے کے بعد بھی خاموش ہونے کے لیے تیار نہیں۔ خاموش کیسے ہو جائے؟ ڈالر بھی تو کمانے ہیں۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ فتح کا انحصار صرف ہتھیاروں پر نہیں بلکہ عقل،
तजर्बे और हकीकत पसंदी पर होता है। भारत की अस्करी क़यादत अगर ज़मीन पर उतर कर सोचती तो शायद इतनी बड़ी सुबकी ना उठानी पड़ती। पाकिस्तान ने अपने महदूद वसाइल में रहकर एक जवाबी कार्रवाई की जो दुनिया भर के अस्करी तज्जियाकारों के लिए एक मिसाल बन गई और इसे अब सिलेबस के तौर पे पढ़ाया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये मगरबी जो मीडिया है वो कह रहा है। और वो क्या कह रहा है ये मैं आपको भी आगे चल के बताता हूं। मोदी जी अगली बार सिर्फ तकरीर ना करें, दुश्मन को पहचानना भी सीखें। पूरी दुनिया हैरान है कि भारत ने 2025 की इस जंग का आगाज कैसे किया ताकि जज्बात भड़काए जाएं, अवाम को चूरन बेचा जाए और इलेक्शन जीतने के लिए जंगी माहौल बनाया जाए, फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया जैसे फिल्मों में विलन एंट्री लेता है। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान ने ऐसा इस्तकबाल किया कि भारत के 5 कीमती त्यारे जिनमें राफेल और Su-30 MKI त्यारे थे, महंगे चिंची रक्षे जो है वो हमने उड़ा दिए, फिजा में जलकर वो राख हो गए। ये मंजर देखकर भारतीय फौज को ऐसा झटका लगा कि खसियानी बिल्ली बनकर मीडिया पर झूठ और प्रोपागंडे का तूफान खड़ा कर दिया। रियासती चैनल्स पर नारे लगे, हमने दुश्मन को कुचल दिया है, जबकि हकीकत में दुश्मन ने इनका गरूर कुचल दिया था। मोदी जी कौम से खिताब में छुपे लफ्जों में जहर उगलते हैं। हमने दहशतगर्दों को निशाना बनाया, ना कि पाकिस्तान की फौज को। अरे भाई, जब आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करेंगे तो जवाब तो फौज ही देगी, ना कि वाघा बॉर्डर पर खड़े हुए गरीब किसान। फिर जब पाकिस्तानी फिजाइया ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के तहत ड्रोन, मिसाइल और JF-17 थंडर के साथ भरपूर जवाबी कार्रवाई की तो भारत के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और पूरी की पूरी S-400 बैटरीज ऐसे बैठ गई जैसे किसी ने बिजली का बिल अदा ना किया हो और वापडा ने बत्ती काट दी हो। चीन और तुर्की की टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान ने जो मल्टी डोमेन हिकमत अमली अपनाई, इसने भारतीय अस्करी क़यादत के DNA बदल के रख दिए। नतीजा, भारत पागल होकर पाकिस्तान के एयर बेसिस, न्यूक्लियर असासे और फौजी तंसीबात पर हमला करने लगा। जैसे नकाम आशिक धमकियां देता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यहां भी हाफिज साहब और पूरी कौम थी जो 9 मई से पहले छेड़ते नहीं और 9 मई के बाद छोड़ते नहीं। तो फिर छोड़ने वाला कौन था? तहज्जुद की नमाज पढ़कर धुलाई का काम शुरू किया गया और अल्लाह की मदद से असर की नमाज से पहले जंग जीत ली गई और पाकिस्तान ने ड्रोन से इन्हें ऐसा भगा भगा कर मारा कि मगरबी मीडिया हंसते हुए कहने लगा कि पाकिस्तान ने भारत को इसकी जुबान में जवाब दे दिया है, और वो भी हिज्जे दुरुस्त करके, प्रॉपर ग्रामर और पंक्चुएशन के साथ। दुनिया की अस्करी तज्जियाकार खास तौर पर मगरिब में ये तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नई जंगी हिकमत अमली, सस्ती मगर मौसर टेक्नोलॉजी और जबरदस्त इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ने एक बड़े फौजी ताकत को दिफाई पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया। यूक्रेन, ईरान और अब पाकिस्तान, सब ने यह साबित किया कि आज की जंगी ड्रोन्स रफ्तार और दिमाग से जीती जाती है, ना कि सिर्फ मिसाइलों और हथियारों की कीमत से। जबकि मोदी बाहर जंग हार गया, अंदर इलेक्शन जीतने के चक्कर में है, यानी घरेलू खिलाड़ी बना हुआ है। क्योंकि जब मैदान में पिटाई हो जाए तो अपना चैनल ऑन करके जीत की फिल्म ऑन कर लेनी चाहिए। बस भारतीय मीडिया ने भी यही किया। अब इस मोटी बुद्धि सरकार की मोटी अकल वाली फौज की कहानी भी सुने। भारतीय फौज की 12 मई की मीडिया ब्रीफिंग दरअसल एक एतराफे नाकामी थी, जिसने दुनिया भर में भारत की अस्करी साख को बुरी तरह मजरू किया। तीनों अफवाज के DGMOs ने जो कुछ पेश किया वो ना सिर्फ तजादात से भरा हुआ था, बल्कि इससे यह भी साबित हो गया कि भारत को पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की कोई तवक्का थी ही नहीं। यह खुद एक हैरान कुन जंगी गफलत है। एयर वाइस मार्शल AK भारती का यह कहना है कि हमने दहशत गर्दों को निशाना बनाया, ना कि पाकिस्तानी फौज को। दरअसल एक बचगाना वजाहत थी, क्योंकि जब आप किसी मुल्क की फजाई हदूद में दाखिल होकर हमला करते हैं तो जवाब यकीनन मिलता है, और पाकिस्तान ने इसका फौरी, शदीद और मौसर जवाब दिया। जब भारतीय सहाफियों ने पूछा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कितने भारतीय त्यारे मार गिराए, तो भारतीय एयर चीफ ने कहा कि यह तकनीकी तफसील है, हम नहीं बता सकते। अरे भाई, दुनिया बता चुकी है।
आप क्या छुपाओगे? भारतीय फिजाइया के डीजीएमओ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराफ किया कि हमें अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतनी शिद्दत से जवाब देगा। क्या भारतीय फौज ने वाकई समझा था कि पाकिस्तान चुप बैठेगा? हाय, कितने मासूम हैं भोले। लगता है पिछली 4 जंगें इनकी मेमोरी वाश हो गई है। चलो, नया सबक जरूरी था। अभिनंदन भी बेचारा थक गया होगा, इसे अब रिलीफ की जरूरत थी। तो अब की ताजा तरीन कहानी यह है कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत को फिजा में जबरदस्त शिकस्त दी और वह इस जंग में छुपती फिर रही थी। भारतीय फिजाइया के कई जदीद त्यारे तबाह हुए, जिनमें 3 राफेल और 2 Su-30 मिग भी शामिल है, जबकि जमीनी तनसीबात पर भी ड्रोन्स और लॉइटरिंग मिनिशंस के जरिए कारी जरब लगाई गई। भारत के जेरे जमीन रडार सिस्टम, एयर डिफेंस पोस्ट और सरकारी फौजी कैंप बुरी तरह मुतासिर हुए, लेकिन इसके बावजूद भारतीय क़यादत ने इन नुकसानात को छुपाने की कोशिश की और जब आलमी मीडिया ने तफसीलात मांगी तो एक भारतीय ने नाइल्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि ये तकनीकी मामलात हैं, दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। सदके जाऊं तेरी मासूमियत पे। आज बैनुल अक़वामी दिफाई मुबस्सरीन और थिंक टैंक्स भारतीय फौजी क़यादत के गैर संजीदा रवैये का मजाक उड़ा रहे हैं। भारत के अंदर भी सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये फौजी क़यादत किस दुनिया में रहती है जिसे दुश्मन की सलाहियतों और रद्द-ए-अमल की कोई समझ ही नहीं। भारत ना सिर्फ ज़मीनी और फ़िज़ाई महाज पर नाकाम हुआ बल्कि सफारती महाज पर भी शर्मिंदगी का सामना कर रहा है, क्योंकि झूठ और छुपाव ने इसकी बैनुल अक़वामी साख को मजीद कमजोर कर दिया है। ये एक ऐसी शिकस्त है जिसे भारत चाह कर भी छुपा नहीं सकता, क्योंकि ये मैदान जंग में नहीं, पूरी दुनिया की आंखों के सामने हुई है। पाकिस्तान की जानिब से किए गए तमाम दावों की भारत ने रस्मी तौर पर तरदीद कर दी है, मगर ये तो बरसों से चला आ रहा मामूल है। जिस तरह भारत जब कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान फौरन इसकी तरदीद करता है, लेकिन वो कोई ना कोई हिकमत अमली के तहत असूल और कोई ना कोई जवाबत रख के मंतक और लॉजिक के तहत जवाब देता है। अब भारत जो है वही खेल खेलने की कोशिश कर रहा है जो कि इसको नहीं खेलना आता। मगर एक हकीकत यह भी है कि अगर मौजूदा जंग बंदी टूटती है और भारत अपनी तरफ से जहारियत में इजाफा करता है तो रवायती ताकत के लिहाज से उसे कुछ बरतरी हासिल हो सकती है। लेकिन इस जंग में कम अज कम इस वक्त पाकिस्तान ने नहायत होशियारी, हिम्मत और महदूद वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करके भारतीय हमलों को रोक दिया, बल्कि कई मकामात पर इन्हें धकेल कर पीछे फेंक दिया। और ड्रोन मुस्तकबिल की जंग का फैसला कुन हथियार, जिस तरह यूक्रेन जंग या मशरिक वस्ता में ईरान की हमायत याफ्ता ग्रोहों ने इसराइल के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल किए, बिल्कुल इसी तरह इस बार भारत और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान ने ड्रोन पर दहाई भर की सरमायाकारी के नताइज दिखा दिए हैं। पाकिस्तान ने तुर्की और चीन से कम कीमत मगर आला मेयार के ड्रोन हासिल किए और अपनी मुकामी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जो भारत जैसे बड़े ममालिक को भी झंझोड़ गया। दुनिया को तवक्का थी कि पाकिस्तान इस जंग में दब जाएगा, मगर हुआ इसके बिल्कुल बरक्स। पाकिस्तान ने ना सिर्फ भारतीय फिजाइया का मुकाबला किया बल्कि कुछ मुकामात पे उसे पिछाड़ भी दिया और उसके बाद ये हालात थे कि भारतीय फिजाइया आसमान और फिजाओं पे जहां पे उसका काम है वहां आने से कतरा रही थी। भारत ने गलती ये की कि उसने अपनी फौजी हिकमत अमली को मगरबी तर्ज पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। महंगे हथियार, मगरबी निज़ाम और स्टंट नमा कार्रवाइयां, लेकिन मगरिब अब वो ताकत नहीं रहा जो माजी में था। अब सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी जीत की जमानत नहीं देती। चीन, रूस, तुर्की जैसे मुमालिक ने नई जंगी हकीकतें तरतीब दे दी हैं और पाकिस्तान ने उनसे सीखा है। रूस के साथ भारत का गहरा दफाई इन्हिसार भी इस जंग में कमजोरी बन गया। पाकिस्तान ने Su-30 MKI जैसे महंगे भारतीय तैयारे मार गिराए और 10 मई को रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को जाम करके तबाह कर दिया। ये वही S-400 है जिसे भारत खित्ते में नाकाबिले शिकस्त समझता था। अब अमरीकी और नेटो दिफाई मंसूबा साज भी पाकिस्तान की यह हिकमत अमली बगौर देख रहे हैं कि रूसी दिफाई निज़ाम को
कैसे नकारा बनाया जा सकता है, जो टिप पाकिस्तान ने उनको दे दी है। पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल शानदार तरीके से किया। ये हकीकत है कि मजमूई तौर पर भारतीय फौज ज्यादा बड़ी और जदीद है, लेकिन इस मखसूस जंगी सूरत हाल में यानी फिजाई झड़पें, सरहद पार हमले और काउंटर अटैक पाकिस्तान ने पासा पलट कर रख दिया। अब भारत को एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि वो आने वाले ड्रोन हमलों से कैसे निपटे। इसे अपने ड्रोन्स बनाने होंगे, मौसर दफाई निज़ाम तैयार करना होगा और सबसे बढ़कर सस्ती टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी करना होगी, ना कि सिर्फ शोपीस हथियारों पर। तो अब यहाँ पे ये साबित हुआ कि जो $100 बिलियन के हथियार इन्होंने खरीदे वो कचरा, और अब आगे जो 100 के खरीदने जा रहे हैं वो भी कचरा, और अब इन्हें वो सबक दोबारा से ABC से स्टार्ट करना पड़ेगा। भारत ने इस जंग में स्टैंड ऑफ मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के कई अहम अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया, जैसे हवाई अड्डे और तंसीबात, मगर जब उसके निशाने पाकिस्तान के मुआशी मराकिज जैसे कराची या न्यूक्लियर असासों की तरफ बढ़े तो ये साफ हो गया कि भारत के जंगी मंसूबा साज मायूसी का शिकार हो चुके थे। क्यों? क्योंकि वही पुराना मगरबी मॉडल जो अफगानिस्तान की फौज, ताइवान और दीगर अमरीकी इत्तेहादी इस्तेमाल करते हैं अब मौसर नहीं रहा। पाकिस्तान ने साबित किया कि जज्बा, होशियारी और स्मार्ट टेक्नोलॉजी से वो सब मुमकिन है जो सिर्फ ताकत से नहीं हो पाता, और इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान ने जंगी मैदान में बरतरी हासिल करके ना सिर्फ भारत को चौंका दिया बल्कि पूरी दुनिया को नई जंगी हकीकतों का आईना दिखा दिया। ये है पाकिस्तान की तैयारी और ये है पाकिस्तान की हकीकत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, क्योंकि हमारे ऊपर इस वक्त इंडियन साइबर जो उन्होंने एक तरह से यलगार की हुई है और हमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं मुसलसल, जिसकी वजह से हमारी रीच जो है वो कम हुई हुई है। ये आपके कमेंट्स, वीडियो को पूरा देखना, इसको लाइक करना, इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज।